good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure to extend to you all a very warm greetings on behalf of Technia Institute of Advanced Studies. Thank you everyone to grace this occasion. Allow me to welcome you all to this induction program for BBA students for academic year 2022-23. May I please request Dr. Bhupendra Tiwari, Chair, Department of Management Sciences, to give the glimpse of a new semester to BBA students, please. In this PPT, I have included all the things which I have faced while interacting with you in the last semester. The most problematic situation was in last semester when you were coming. मैं कौन हूँ सर मालूम नहीं, ये कौन है अब मालूम हो गया, या अब मालूम हो गया, but there is some change on the label. So who is who? First you should know who is the authorities, who are the faculty members, who are the with whom you have to interact, what is your credit framework, what is your requirement, what is your basic course curriculum. All these I have included in this PPT and I will interact with you. मैंने थर्ड इवनिंग भी और थर्ड मॉर्निंग भी में, थर्ड सेमेस्टर मॉर्निंग भी में जब पढ़ा रहा था मैं बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो उसमें मैंने क्रेडिट फ्रेमवर्क 2 दिन क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था. एक चीज आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि आपके सिस्टर कंसर्न, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसका सिस्टर कंसर्न, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं. तो टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज आपके इंस्टीट्यूट का नाम है, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज टाइस. इसके अलावा आपका अष्टावक्र इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस एंड रिसर्च आपका एक बगल में ही है, जहां पर जिनको आप दिव्यांग जन कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उनकी एजुकेशन का है. इसके बाद टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ डांस म्यूजिक फाइन आर्ट्स का भी एक ऑर्गेनाइजेशन आपका सिस्टम कंसर्न है. टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज सीडीएल, जो डिस्टेंस लर्निंग मोड में आपको भी एमबीए यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आप सीडीएल डिस्टेंस लर्निंग मोड में आपके इसी कैंपस में चलता है. और इग्नू का एक सेंटर भी आपके बगल वाली बिल्डिंग में ही चलता है, जो उधर मंदिर की तरफ से आप जाएंगे तो वहां पर वो सेंटर है. इग्नू से अगर आप कोई कोर्स कोई करना चाहता तो वहां से भी कर सकता है. और टेक्निया इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 8 में है. टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, यही जहां आपका मंदिर है, मंदिर के बगल में ही जो इग्नू का सेंटर है उसी के पैरेलल एक और बिल्डिंग है, उसमें जो बीएड का प्रोग्राम चलता है. तो ये आपके सिस्टर कंसर्न है. एक ऑर्गेनाइजेशन आपका टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ जो पेरेंटल बॉडी है, इसी के एक सिस्टर कंसर्न आपका मथुरा में है, संस्कृति यूनिवर्सिटी. संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा दिल्ली हाईवे पर है, बहुत बड़ा सा कैंपस है, कभी आप वहां भी विजिट कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द एफिलिएशन एंड एक्रेडिशन एंड approving authority of the institute. I have given all the details here. GGSIP University, affiliated to GGSIP University. These are the authorities. Honorable Director Sir, Honorable Dean Sir, Director Dr. Ajay Kumar Rathore ji and Dr. M.N. Jha is Dean Academics. Myself, Professor and Chairperson, Department of Management Sciences. Now you should be very careful. Dr. Ashutosh Bajpayee is now the Director CDL and Coordinator USB Cell, Universal Human Values. Dr. Reema Sharma is the Associate Professor and HOD MBA. Dr. Monica Mehrotra is the Professor and HOD Morning Shift. Evening Shift HOD is Dr. Archana Dikshit. And faculty members, Dr. Ruchi Srivastava, senior most faculty and in charge of all the clubs. Dr. Garima Singh, she is on maternity leave. Dr. Vaishali Prasad, associate HOD
मॉर्निंग शिफ्ट डॉक्टर रुबीना बानो, Dr. Suhail Ehsam, Dr. Sandeep Kumar, Dr. Rachna Rishi, I have already introduced, and Dr. Megha Mohan is HOD evening shift, associate HOD evening shift. So there are major changes. So morning shift HOD is Dr. Monica Mehrotra, evening shift HOD is Dr. Rachna Dikshit, associate HOD morning shift is Dr. Vaishali Prasad, and associate HOD evening shift is Megha Mohan. So note down it. Other faculty members are Sinu Arora, Dr. Jyoti Tripathi, Ms. Manisha, Ms. Kenika, Mr. Sri Singh, Ms. Pooja, and Dr. Pushpa. Academic cell in charge. For any kind of academic problem, you can contact Megha Sharma. Examination department, now Dr. Bhupen Bharti is the head of the examination department, and for any kind of support and any kind of problem, you can contact both these, Mr. Sumit, coordinator of examination, and Dr. Bhupen Bharti, HOD examination. आप लोगों को इसलिए ये डिटेल मैंने दिया है कि आप लोग कभी भी जब अप्रोच करते थे पिछले सेमेस्टर में, तो मुझे ये कई बार आपको बताना पड़ता था कि बेटा किसके पास चले जाओ. सो आई हैव गिवन ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग योर अपकमिंग सेमेस्टर, whom you have to approach for any kind of problem. 3 years program, since we are running 3 years program, next year से हम जो NEP 2020 जब लागू हो जाएगा, we will be having 4-year graduate program. Since currently we are in the 3-year undergraduate program, so we will talk about the 3-year degree program, credit system and credit framework. Objective and quality policy of the BBA department, we have already updated on the website also, and we have told you so many times, so we are not going to in the detail. Program outcomes, NEP 2020. First you should know what is this NEP 2020. NEP, New Education Policy, was first introduced. कभी सुना था NEP कब आई थी पहली बार इंडिया में? All the government is having the entire focus on NEP. डेली कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है, इसी दिल्ली में चल रहा है, और पूरा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है. एजुकेशन सिस्टम यहां से चेंज होने जा रहा है, और इस एजुकेशन सिस्टम के चेंज होने में ट्रांजिशन पीरियड में जो होता है सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसी के ऊपर आता है, क्योंकि उसे पिछले एजुकेशन सिस्टम को कारपोरेट करते हुए न्यू एजुकेशन सिस्टम को भी इनकारपोरेट करना है. तो आपको दोनों सिस्टम जो पैटर्न चल रहा है उसको भी इनकारपोरेट करना है, और जो आने वाला एजुकेशन सिस्टम है उसे भी आपको इनकारपोरेट करना है. तो आप इसको इतनी लाइटली मत लीजिए. NEP, New Education Policy, was first introduced in 1968, and second time NEP was implemented in 1986. बस कुछ नहीं करना है, 68 को 86 कर दीजिए, याद रहेगा बहुत आसानी से. और this is the third time NEP has been, New Education Policy has been launched and going to be implemented from the next semester in 2023, which is known as NEP 2020. What are the major focus in NEP? There are only 3-4 things. From implementation of this NEP, undergraduate course will be for 4 years. 4 साल का कोर्स होगा. देयर विल बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम. आप 1 साल के कोर्स के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं,
लेकिन ये आपके दिमाग में कई बार बच्चों ने पूछा था हमसे कि सेमेस्टर के बाद एंट्री एग्जिट नहीं है, ईयर में है। 1 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं, 2 साल के बाद कर सकते हैं, 3 साल के बाद कर सकते हैं। आप कहें कि पहला सेमेस्टर कंप्लीट करके और एग्जिट कर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू हैव टू एक्वायर द मिनिमम क्रेडिट। मिनिमम क्रेडिट अभी मैं आगे और इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है। डुअल डिग्री प्रोग्राम, अभी तक आप एक डिग्री अगर परसू कर रहे थे तो दूसरी डिग्री परसू नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप साइमल्टेनियसली 2 डिग्री परसू कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर 2 डिग्रीज इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पीजी प्रोग्राम, अगर आपने यूजी प्रोग्राम 4 ईयर का किया है तो पीजी प्रोग्राम 1 साल का होगा। रिसर्च पर फोकस, स्पेशली इन 4th ईयर यानी 7th and 8th semester, there is special focus on the research and research projects, because you have to excel in your career as a multi-dimensional personality. उसके पहले 1 साल में आपके स्किल पर फोकस किया जा रहा है, दूसरे साल में भी आपके स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस किया जा रहा है, 3rd ईयर में आपके कोर एजुकेशन सिस्टम को, so that you can be educated and you can be skillful. But in 4th year you have to become the leader of your organization. You can be become the leader of your organization, so there is a special focus on the research. There will be 4-year UG program. एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है, अभी तक जो सिस्टम था वो था स्टूडेंट सेंट्रिक। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ओबीई फ्रेमवर्क, विच इज स्टूडेंट सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक से आप स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं। कैसे? अभी तक आपका फोकस था वो कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने परसेंट बच्चा 60% एक्वायर कर रहा है, कितना 70% गेन कर रहा है, कितने की कौन टॉप कर रहा है। सबसे ज्यादा टॉपर्स लगातार हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के टॉपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हैं। इन सब पर आपका 80% आ जाए, 90% आ जाए, आपको इंटरनल में अच्छा नंबर मिल जाए, ये सारा फोकस होता था। आपके मार्क्स गेन करने पर ज्यादा फोकस होता था, इसी से आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता था। बट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द आउटकम। व्हाट इज योर आउटकम? व्हाई यू आर परसुइंग दिस ग्रेजुएशन बीबीए? टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। हाउ मच स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयबल आफ्टर कंप्लीटिंग द बीबीए प्रोग्राम? दिस इज द आउटकम ऑफ द एजुकेशन। कितने लोग एम्प्लॉयबल हुए? इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल आप कब होंगे? जब आप स्किल्ड होंगे। केवल नॉलेज से आप स्किल्ड नहीं हो सकते। यू माइट बी हैविंग टू मच नॉलेज ऑफ योर डोमेन, बट यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयबल while you are not having the skill. सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में अभी भी स्किल्ड मैन पावर की बहुत कमी है। हर इंडस्ट्री कहती है हमें स्किल्ड एम्प्लॉयड स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और कोई भी मैन पावर केवल बीबीए कर लेने से स्किल्ड नहीं हो सकती, उसको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अब ये वर्किंग नॉलेज कहाँ से आएगा? ये आपके कोर्स करिकुलम फ्रेमवर्क में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अभी हम उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अभी तक हम लोगों का जो फोकस होता था वो था बीटी पर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी।
remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating, ये हमारा फोकस हुआ करता था। आपको पहले सेमेस्टर में पहले यूनिट में रिमेंबर करवा दिया, दूसरे में अंडरस्टैंड करा दिया, दूसरे यूनिट में, तीसरे में आपको कोशिश किया कि आप इस थॉट को और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें, एनालाइज कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें। बट नाउ द फोकस इज ऑन द क्रिएशन, creativity, what the skill, what the outcome you can create from your education system is the main focus of the new education policy. Creation is the most important thing. तो जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी तब तक इस चेंजिंग पैराडाइम में, चेंजिंग सिनेरियो में आप एम्प्लॉयबल नहीं हो सकते। इवन यू कैन नॉट सर्वाइव इफ यू आर गोइंग टू बिकम, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया कि हमको नौकरी करना ही नहीं है, हमको तो एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें तो एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए नहीं, तो हमें स्किल क्यों चाहिए? आपको स्किल इसलिए चाहिए कि आपका प्रोडक्ट अगर इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इंडस्ट्री में आप सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर हैं आपके। और ये एग्जिस्टिंग कंपटीटर में से आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिमांडफुल बनाएं, ये आपके स्किल से ही आता है। जियो ने सरवाइव किया मार्केट में, तो उस समय जियो कोई कंपनी अकेली नहीं थी। जियो ने तो बहुत बार मार्केट टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री किया है। उस समय दसियों कंपनीज टेलीकॉम सेक्टर में थी, बट बिकॉज ऑफ हिज मार्केटिंग स्किल एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो आज पूरे मार्केट का नंबर 1 किंग है। तो बिकॉज ऑफ योर स्किल, बिकॉज ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यू कैन बिकम द मार्केट किंग इन कमिंग फ्यूचर। जो अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में मैन पावर, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन ही उसकी सबसे बड़ी पावर है इस अमृत काल में, और उसी को स्किल्ड करने के लिए सारी कोशिश गवर्नमेंट की हो रही है। उसी पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं इसको हम, पॉपुलेशन डिविडेंड को इनकैश करने के लिए टू बिकम द वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर आल्सो, the government is trying to create the skills in every youth to become more employable. हमने अभी आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करी है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ अभी तक आपका जो क्लास होता था वो मोनोटोनस था। देयर वाज अ डिलीवरी सिस्टम इन द क्लासरूम। Now we are moving towards 3 kind of teaching learning pedagogy. There is participative learning, experiential learning and problem solving learning. There are 3 methods. Experiential learning is the major component to increase the and enhance the employability and skill in your career. किसी भी टॉपिक को, किसी भी नॉलेज को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे प्रैक्टिकल कंपोनेंट के थ्रू, तब तक आपके अंदर स्किल नहीं आ सकती। जैसे मैंने कई बार आपको बिजनेस रिसर्च में BRA में पढ़ाया था कि किसी भी क्वेश्चन में किस कंपोनेंट को हम क्यों रखते हैं। हमने कई बार एक्सप्लेन किया था कि एक सिंपल सी बात होती है कि अगर क्वेश्चनेयर फ्रेम करते हैं तो हम जनरली पूछते हैं व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर जेंडर। बहुत सिंपल, सब लोग समझते हैं कि बस ये डेटा बाइफरकेट करने के लिए रखा जाता है कि नेम, जेंडर, एज, लोकेशन। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चनेयर में ये सारे कंपोनेंट पर्पसली भी रखे जाते हैं, बिल्कुल इनका पर्पस होता है, और इस डेटा से हम बिल्कुल आउटकम ड्रॉ करते हैं।
रिजल्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, इससे रिजल्टेंट हम ड्रॉ करते हैं। इसका एक पर्पस होता है रखने का कि हम एज ग्रुप क्यों लेते हैं, जेंडर क्यों लेते हैं, नाम आपका क्यों पूछा जाता है, उसका एक पर्पस होता है। ऐसा नहीं है कि वह यूजलेस होता है, वो पहले के 3-4 पॉइंट्स जो डेटा कलेक्शन करने वाले आपसे पूछ रहे हैं तो वो बेकार हैं। नहीं, तो ये आपके अंदर स्किल तभी आएगा जब आप मार्केट में निकल करके एक्सपीरियंस करेंगे, उस क्वेश्चनेयर को लेकर के जाएंगे और मार्केट में क्वेश्चन डेटा कलेक्ट करेंगे, तभी आएगा। अगर आपको ये पता है तो एक सेमेस्टर के लिए मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट 20 क्रेडिट का है और एक क्रेडिट स्वाभाविक है कि हमने अभी आपको बताया कि 15 घंटे का एक क्रेडिट है, 15 आवर्स का, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कितने आवर्स की टीचिंग या लर्निंग आपको चाहिए एक साल में। 1200 to get promoted 1200 hours is required according to NEP 2020। 1200 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। कंपोनेंट्स आपने अपने कभी कोर्स करिकुलम को देखा है? कोर्स करिकुलम में आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं। गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द interdisciplinary, multidisciplinary, skill enhancement, ability enhancement, NUS, non-university courses, MOOCs, discipline specific theory, DSC जिसको कहा रहा है, electives जिसको कहा जाता है, DSC जो electives अभी आपको उससे भरवाया जा रहा था, गूगल शीट शेयर किया गया था। कितना कोर्स में थियरी में आपको कितने क्रेडिट की है, ये सारा कुछ आपके उस स्कीम में, जिसको जब सिलेबस आप डाउनलोड करते हैं तो उस स्कीम में शुरू के 3-4 पेज कभी आप नहीं पढ़ते, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके अलावा अगर आपने इधर उधर किया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है 3 साल के डिग्री को एक्वायर करने में। तो आप इस बाइफर्केशन को उसमें बिल्कुल दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। हम एक ब्रॉड एरिया में बाइफर्केशन आपको बता दे रहे हैं कि एनईपी 2020 में मेजर कोर सब्जेक्ट की क्रेडिट का रिक्वायरमेंट अगर 3 ईयर का यूजी कोर्स है तो 60 है, और 4 ईयर का यूजी कोर्स है तो 40 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। आप देखिएगा 3 ईयर में 60 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, और अगर 4 ईयर यूजी कोर्स आप परसू कर रहे हैं एनईपी 2020 में तो क्रेडिट कोर सब्जेक्ट की क्रेडिट रिक्वायरमेंट घट जाती है, क्योंकि 4th ईयर में हमने पहले ही आपको बताया कि आपका जो फोकस है वो रिसर्च पर है। माइनर स्ट्रीम और मेजर स्ट्रीम 2 बाइफर्केशन किए गए हैं। अभी तक ये होता है कि अगर आपने अपने टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट का टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट आपको है 4 ईयर में 160, मान लीजिए आपका अभी जो कोर्स टोटल रिक्वायरमेंट था 140 जो 3 साल में है, अभी 3 साल में अगर आपने 50% क्रेडिट एक्वायर कर लिया, 50% कितना होगा? 71 क्रेडिट। 71 क्रेडिट में अभी आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि वहां साफ लिखा हुआ है कि पास होने के लिए आपको 136 क्रेडिट एक्वायर करने पड़ेंगे। अभी एनईपी 2020 जब लागू हो जाएगा तो आप अगर 71 क्रेडिट एक्वायर कर रहे हैं तो यू विल बी अवार्डेड द डिग्री ऑफ माइनर, एंड इफ यू आर गेटिंग द 142 क्रेडिट इन 3 years then you will be awarded the degree of major. This is the basic change which is going to happen in the future. Value added program आपको कई बार आपने यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। 3rd सेमेस्टर में हमने वैल्यू एडेड एडवांस एक्सेल पर इंप्लीमेंट किया था। वैल्यू एडेड और स्किल इन्हांसमेंट 2 कंपोनेंट अब मेजर इंक्लूड किए जा रहे हैं।
आपकी कोई भी डिग्री तभी वैलिड होगी एनईपी 2020 में जब उसमें कम से कम 6 to 9 क्रेडिट स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज का हो और 6 to 8 मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 क्रेडिट वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स का हो। क्रेडिट सिस्टम में हमने जो आपको बताया कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स पर बहुत फोकस है गवर्नमेंट का, और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कोई भी सब्जेक्ट को अभी तक यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं कि एक बीबीए में कंप्यूटर का कोर्स लाए और उस कोर्स को उन्होंने लिख दिया स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। सपोज उन्होंने कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया बीबीए में, कंप्यूटर का कोर्स बीसीए का कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स को ला करके उन्होंने लिख दिया स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, दूसरे को लिख दिया एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, तीसरे को लिख दिया एनयूएस। ये स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का बिल्कुल ये क्रेडिट नहीं माना जाएगा तब तक जब तक कि ये एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के अलाइनमेंट में ना हो। और नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के अलाइनमेंट में कोर्स को स्किल डेवलपमेंट के कोर्स को लाने के लिए 30 इंडस्ट्री से उसका अप्रूवल होना चाहिए। 30 इंडस्ट्री को उसका एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने उसका किया हुआ है कि 30 इंडस्ट्री लिख करके देगी कि ये कोर्स, इस कोर्स के बेसिस पर हम एम्प्लॉयमेंट इस स्टूडेंट को दे सकते हैं, तब वो एनएसक्यूएफ का अलाइनमेंट माना जाएगा, तब वो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है। अब आप बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए क्या मुश्किल है, उन्होंने भेजा एक डॉक्यूमेंट और 30 इंडस्ट्री से उन्होंने लिखवा लिया। 30 इंडस्ट्री में किससे लिखवा रहे हैं? 30 इंडस्ट्री के सीईओ लेवल अधिकारी से लिखवाना है आपको, बिल्कुल उनसे, उनके सीईओ लेवल से लिखवाना है कि ये इस कोर्स के बेसिस पर हम एम्प्लॉयमेंट अपनी इंडस्ट्री में दे सकते हैं। मान लीजिए 30 लोगों ने लिख के दे दिया, एक सिरफिरा आया, उसने कहा आपने लिख के दिया था, हम ये कोर्स करके आए हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट दीजिए। इंडस्ट्री मना कर सकती है। और देने के बाद गवर्नमेंट ने यह भी शर्त रखी है कि अगर आपने ये लिख के दिया हुआ है तो आप अपने टोटल मैन पावर का 8% मैन पावर इंटर्नशिप के लिए रिजर्व रखेंगे। इनको जिनको लिख के दिया है आपने, इनसे इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 8% मैन पावर आप हर साल इंटर्नशिप करवाएंगे। और वो भी ऐसे नहीं कि हां आपने लिखवा लिया, इंटर्नशिप पोर्टल के थ्रू करवाएंगे। ये उसमें कंपल्सन है, वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। इसलिए कोई इंडस्ट्री लिख के देने वाली नहीं है कि आपका ये कोर्स स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, कोई नहीं देने वाला है इतनी आसानी से। जो यूनिवर्सिटीज गलतफहमी में बैठी हैं, वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से पूरा एक तरह से कह सकते हैं नकेल कस रखा है कि नहीं, इंडस्ट्री को भी पकड़ के रखा हुआ है और एजुकेशन सिस्टम को भी पकड़ के रखा हुआ है, दोनों नहीं जा सकते। तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का जो ये वैल्यू एडेड कोर्सेज को जो हम स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कह रहे थे, ये मैं आपको बार बार मॉर्निंग सेशन में भी यही क्लियर कर रहा था, इस सेशन में भी यही क्लियर कर रहा हूं। वैल्यू एडेड कोर्सेज आर नॉट द स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज। स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज आर द कोर्सेज which are aligned with the NSQF in NEP 2020. Value added courses are those courses which are the traditional on and given on these parameters. 4 पैरामीटर्स ये दिए हुए हैं, इन पर इसके अलावा भी अगर कुछ आप सोचते हैं तो वैल्यू एडेड कोर्स चला सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेरिटेज ऑफ इंडिया, कल्चर, सोसाइटी, ये वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं। एनवायरमेंटल साइंस एजुकेशन, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन जीडीपी, इन सब पर आप कोर्सेज चला सकते हैं। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस पर जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन पर आप वैल्यू एडेड कोर्सेज चला सकते हैं। हेल्थ, वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पर आप कोर्सेज चला सकते हैं।
एक चीज आपको और क्लियर कर दें कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के लिए अगर इतना टफ प्रोविजन है तो यूनिवर्सिटीज के लिए आसान कहां से है, या कॉलेजों के लिए, ऑटोनॉमस कॉलेजों के लिए, या आपके लिए, आप कहां से इस कोर्सेज को कर सकते हैं। बहुत सी आसान सी चीज है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल गवर्नमेंट ने बना रखी है, एनएसडीसी कहते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। 37 स्किल काउंसिल अभी तक बन चुके हैं। ये स्किल काउंसिल का काम ही यही है कि ये आपके क्वालिफिकेशन पैक, क्यूपी कहते हैं इनको, क्वालिफिकेशन पैक बनाएं। लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेवल 1 का मतलब होता है बिल्कुल जो प्लम्बर वगैरह टाइप के होते हैं उनके कोर्सेज हैं। लेवल 2 का मतलब होता है जो टेक्नीशियन होते हैं उनके कोर्सेज हैं। लेवल 3 का मतलब है जो इंटर पास करके आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं वो होते हैं। आपके लेवल पर 4 ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर तक, 5th और पोस्ट ग्रेजुएशन में 6 एंड 7 लेवल का क्यूपी करना है आपको। आप मान लीजिए कोई स्किल इन्हांसमेंट कोर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल आप रजिस्टर करिए, एनएसडीसी की साइट पर जाइए, रजिस्टर करिए, उनके कोर्स पैकेज को ले लीजिए। कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सर्टिफिकेशन के लिए उनके इवैल्यूएशन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आप घर बैठ करके करिए। एक आसान सा तरीका यह है कि आप मान लीजिए कोई भी आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है और उसमें आपको स्किल है, आप अप्लाई करिए और कहिए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कहिए कि हमारा इवैल्यूएशन आप करवा दीजिए। वो इवैल्यूएशन करवा करके आपका एग्जाम ले लेंगे और आपको सर्टिफिकेट वहीं से अवार्ड हो जाएगा। ये लेवल 5 और 6 की बात मैं कर रहा हूं। आपके ट्रेडिशनल कोई भी इस तरह का स्किल जो आपका पेरेंटल है उसके लिए भी सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है और ये सर्टिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। अब आपको चाहिए इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के लिए आप इंटर्नशिप पोर्टल पर जाइए। इंटर्नशिप के लिए आप उस पोर्टल पे जाकर के आप रजिस्टर करिए। 1500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, 700 मिलेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें आप इंटर्नशिप करने जाएंगे, और प्लस अब आपको जो रिम्यूनरेशन वो इंटर्नशिप के दौरान इंडस्ट्री देती है वो अलग है। ये 2200 रुपया आपको बिल्कुल परफेक्ट ऐसी इंडस्ट्री के लिए है जहां आपको 1 रुपया नहीं मिलता। दूसरी चीज आपको है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आप अपने अकाउंट अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आप डिजिटल लॉगर पर जाइए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अपना रजिस्टर करिए, आधार कार्ड से रजिस्टर हो जाएगा। आप जो भी क्रेडिट एक्वायर करते हैं उस आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिपॉजिट हो जाएगा, जहां से भी एक्वायर करेंगे। अभी जैसे आप मूक्स के कोर्स करते हैं और वहां पर क्रेडिट आपको मिलता, अभी उसका क्रेडिट नहीं था, अभी गवर्नमेंट ने उसको भी क्रेडिटाइज करने जा रही है, मूक्स कोर्सेज को भी। तो क्रेडिट, आपका क्रेडिट आपके उस बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। अगर किसी इंस्टीट्यूट से आपने कोई ऐसा कोर्स किया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपके खुले हुए हैं, वो वैल्यू नहीं रखेगा, ध्यान रखिएगा। जब क्योंकि उनको एबीसी में जब तक आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो लॉगिन उनको मिला ही नहीं है, उस संस्था को लॉगिन ही नहीं मिला है, तो वो आपको एक्वायर कैसे आपको क्रेडिट अवार्ड कर सकती है? तो आपके उस बैंक में क्रेडिट जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप आ जाइएगा, हम आपको बाद में बता देंगे। असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे थे। असेसमेंट क्राइटेरिया आपका है, आप जानते हैं 25 मार्क्स इंटरनल है, 75 मार्क्स एक्सटर्नल है। प्रैक्टिकल के लिए 40 और 60 सीआई मतलब इंटरनल असेसमेंट 40 का है और 60 का आपका एक्सटर्नल है। डिजर्टेशन और थीसिस प्रोजेक्ट्स के लिए 50-50 का है। इसका बाइफर्केशन नीचे दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा कि 60 जो आपको क्लास टेस्ट देना होता है वो 60% मार्क्स का है। CIE जिसको कहते हैं क्लास इंटरनल क्लास इवेल्युएशन आपका 40% मार्क्स का है। उसका बाइफर्केशन A, B और C में मैंने दिया हुआ है। ABC 40% है लाइब्रेरी बेस्ड असाइनमेंट, वाइवा बोसी,
प्रेजेंटेशन, केस स्टडी और बेस्ड असाइनमेंट है 20% वेटेज, और असाइनमेंट 1-2 और 1-2 के जो वेटेज है वो 40% है। इसी तरह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी बाइफर्केशन हमने दिया हुआ है, ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में अभी वाजपेयी सर, हमारे ऑनरेबल वाजपेयी सर जो उसके इंचार्ज हैं, वो आपको डिटेल करेंगे। टेक्निया के कुछ जर्नल्स हैं जिसके बारे में सर डिटेल करेंगे। पब्लिकेशन, मेंटर मेंटी सिस्टम आप लोग अब तक एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मेंटर और मेंटी का जो अलाइनमेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एक स्टूडेंट अपने मेंटर से हर प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सके और आप उसका सॉल्यूशन ले सके। तो मेंटर मेंटी सिस्टम को आप लोग बहुत लाइटली लेते हैं। कई बार आप थोड़ा सा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास जरूर आएंगे। ये सारे मेंटर से रिक्वेस्ट है कि बॉन्डिंग आप स्ट्रॉन्ग करिए। हम 2008 के बच्चे से आज भी संपर्क में हैं बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग। तो वो बॉन्डिंग हम चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर ले आए और बच्चे आपके संपर्क में रहें। These are the some clubs and members information which you will get। टेक्निया टीवी इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का अलग से प्रेजेंटेशन होगा, ये थोड़ा सा हमने आपको दिया था। ये हमारे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी फैकल्टीज़ बाहर जा कर के करते हैं। दूसरे जगहों पर सेमिनार्स, लेक्चर, एमडीपीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। यहाँ भी आपने कई बार पार्टिसिपेट किया होगा। इंडस्ट्रियल विजिट, स्पोर्ट्स, these are the extra curricular activities, NSS, convocation, this is all. Thank you very much. I would like to call Dr. Nivedita, Head Training and Placement, to please address the students. I will be talking to you for training and placement cell, but before I really start with what I have thought to discuss with you, let me have a very brief understanding that how many are from BBA and how many are from MBA. So those who are from BBA, just raise your hand. BBA, okay, fine. Achha, MBA students are not there, okay, fine. So BBA, out of those students who are here, assembled here, how many of you are interested for job? Fairly good number. Good percentage, almost 50% of the lot which is here. So, lots of expectation from me, right? That madam is there to give job, right? I have so many companies in my pocket and I can take it out for you like this, yes? Yes or no? This is your expectation. But let me be very frank and very straight to it. Seeing your performance, seeing your behavior, seeing the level of skills and attitude and approach which you have developed till now, I'm sorry to say, you really need to work hard. With this type of approach, with this type of attitude, it will be a little difficult for you to really adjust with the corporate world. Because I am working here for the past 7 years and my total experience is more than 20 years. 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी ऐसे बैठे हूँ और कोई मेरे पीछे दौड़ाया हो। उसके पहले 10-15 साल तो स्टूडेंट रही मैं भी, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया माँ बाप ने, ये कह कर के किसके बाद लाइफ बड़ी इजी है। You just complete this 10th and then after this you are free. You will be flying like anything. Oh, 12th, just complete it and then ग्रेजुएशन बस यही है, आखिर है, इसके बाद कहाँ है? ये करते करते पता नहीं कितनी कितनी डिग्री दिला दी है माँ बाप ने, लेकिन तभी भी ऐसे नहीं हो पाए। मैं इसी बात को फिर से कहना चाहूंगी, इतना कुछ करने के बाद भी बहुत सक्सेसफुल हूं कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। बट आई कैन अश्योरली से दैट बहुत सारे मेरे अपने सपने अभी तक अधूरे रह गए, जबकि मुझे पता है दैट आई हैव डिवोटेड every effort of mine to complete all my dreams. But still, there are a number of dreams who are still. I'm just hoping that one day I will be achieving those dreams. I will be really living those dreams. So all of you students who have certain dreams, just try to understand that where you are and what efforts you are putting in.
Your fellow teachers, I mean, your department has discussed so many things with you, and more so that NEP, new education policy, or lots of things that they have discussed, that how the coming generation is going to be more equipped, more skilled than this batch. Try to understand the competition which you are going to face. We are fortunate or unfortunate that we are also a product of COVID-19, with lots of curtailed social activities. Perhaps we have lost our social connect as well. That physical social connect, of course, virtually we are always on some or the other social network sites. But that physical social connect is missing, and we have really lost most of the required social behavior. And I must tell you, all the corporate world is going to judge you on your social behavior, physical social behavior, not your virtual social behavior. I consider it as a great honor to invite Dr. M.N. Jha, Dean Academics, to address the audience. You have been given the good dose by Dr. Nivedita. And after that, I think this is the best outcome, that whatsoever lot is there, a bit disciplined, sitting. I don't know how much you are grasping, but it is obvious that you all are very much connected too. I will simply make something out, something different. थोड़ी डांट, थोड़ी डपट, थोड़ा सबक, which I think is important at your level. We have observed you all in first and second year. There was huge deviation, not exactly with you, but in totality. Most of the students were not found obedient and disciplined. They were not taking much care of the class and the instruction of the faculty, which might be acceptable sometimes, but suicidal for your career. Mind it, suicidal for your career. If you are not abiding with instruction, not attending class, not moving in line of the instruction, then very tough time waiting for you. The job which you find that most of the people around are doing, 80%, even more than, those jobs are not to be in the market within a decade. You will not find within 5 to 10 years any job of consultant. Chatbot is sufficient. What to talk about Google? Chatbot is sufficient. You ask any damn question, chatbot will give you reply along with the section and case studies. Rather, I was told in convocation by the chief guest, chatbot is even providing what software and apps is appropriate, how the syntax will be written. So much advanced version we have now. So, which will save you? What is savior? कैसे बचोगे? Is merely going through books and fetching 90, 80, 85% is sufficient? Is it sufficient? Is it sufficient? Not at all, not at all. Knowledge, you might have knowledge, you might fetch good marks, but until you are equipped with the skill, you won't be in demand in the market. Only skilled persons are in need now. So knowledge is also important. Had there been the demand of a skill only, then mechanic is sufficient to get the market completely, because mechanics are having the good skill, but not knowledge as engineers. There are many engineers having the good knowledge, but they are not skilled. So they won't be in demand. Few engineers, few doctors who are having the good knowledge and good practice, good idea of their skill and operation, they are in the good demand. So skill is important and knowledge too for success. So in morning session I also discuss about, and sometime back I discussed in one training program, that
three very important factors what you need to understand. Knowledge, are you getting? Yes, knowledge. Equally important, and now it's more important, is skill two. And third, the most important, if you have knowledge, you are skilled, but your behavior is not at par. Your attitude is negative. You won't get success, so your behavior and attitude is also required to be at par. Means you are a good person, positive, knowledgeable, skillful, no one can catch you. There is huge demand in market. There is saying, डर के आगे, sorry, डर के आगे कुछ और भी है, तब जीत है. डर के आगे? Yes, वहीं से लिया गया. डर के आगे उस प्रोसेस में उसने जो फेस किया वो तो बतलाया ही नहीं. डर लग रहा है मुझको प्रिपरेशन करने में, क्लास में जाने में, फैकल्टी से बात करने में, टीएनपी के प्रोसेस को अटेंड करने में, जीडी और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने में डर लग रहा है. पता नहीं क्या मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए. डर के आगे सबसे पहले चीख है, चीख, दर्द, पेन, देन यू विल गेट सक्सेस. से डोंट अफ्रेड ऑफ रात 12 बजे तक पढ़ना है, 2 बजे तक पढ़ना है, कैसे, सॉरी मामा नो, मुझसे नहीं होगा, मैं कल एग्जाम नहीं देने वाले. चीख से बच रहे हैं आप. यू आर कीपिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम द पेन. अनलेस यू गो थ्रू द पेन यू वोंट गेट सक्सेस. गाय दूध है, यस और नो? गाय दूध देती है, यस और नो? यस, वंडरफुल. हु टोल्ड इट? निकालना पड़ता है. यस, अनलेस यू गेट इनटू, तुम्हें निकालना है, मेहनत करनी है. दूध लेने के लिए मेहनत करनी है. गाय आपके पास चल करके भैया मुझसे दूध निकाल लो ना, नहीं तो मैं निकाल के दूं क्या? नो, यू विल हैव टू, यू नीड टू स्किप इट आउट. सो आपने एफर्ट लेना है. दैट एफर्ट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट डूइंग. फ्रैंकली, इफ एट ऑल यू आर डूइंग, rest who are not in the hall, they are not doing. Even if you are doing, you need to enhance your benchmark. So unless you be proactive, success is not there. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, right? Yes. कुछ करना पड़ता है. So some old saying, these are few examples. You just think about the old saying and change scenario. As because you are changing agent, you need to change not only yourself, but you need to change entire system now. Entire world is looking towards India. India is looking towards the students. And that to students of the country capital. You are sitting in Delhi. So expectation is much more high, but the reflection of what we are getting in the class, in the campus is not at par. This is not discouraging. I'm simply jolting you out. Time has changed, new educational policy has been introduced. This is outcome-based education. अगर आपने learning किया, degree लिया, it is no use until you are being hired, or until you start something, your own startup, your own business and getting success. Agar nahi, sorry, you are not doing good. You are not doing at all. So scenario has changed completely. It's outcome-based education phase now. You will have to. There is no way out. There is no way out. So with this expectation, थोड़ी डांट, थोड़ी समझदारी, थोड़ा प्यार, आप बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, we will certainly feel proud. And after parents, if the only one community who love you much, at part of the parent and the teacher, we always wish for the best in your life. With this hope that you will really jolt out yourself, come out of sleep, start doing good. In class, you ask lot many questions to your faculty. Do you ask questions? If not, then you are not doing good. Ask lot many questions. Now time has changed. New education policy expect a student to involve. Come a student involved. Come on the podium. Address your friends. Share something new. Put lot many questions to your faculty so that faculty could also aware and prepare before being in the class. आज मुझे क्लास में जाना है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन कर दें यार.
So faculty will also improve themselves. Ultimately, they will come with the quality material in your class and you will get quality input and you will improve yourself. I don't know how you are taking it, but you need to take something seriously. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much. I take immense pleasure in calling upon the visionary person, Dr. Ajay Kumar, Director TIES, for his guidance and gentle support. Sir, please come and address the students. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यूजीसी का आया हुआ है. यूजीसी के साइट से आप डाउनलोड करके देख लो इसको, आप लोग की आंखें खुल जाएंगी. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इंडिया इज मूविंग विद दिस फ्रेमवर्क जो हम सिखाना चाह रहे हैं आपसे. अगर नहीं सीखोगे बाहर रहोगे. ये सारी बात आपको सिखाई जा रही है. किसने सिखाई जा रही है? इट्स नॉट वी अलोन. एवरी इंस्टीट्यूट across India is moving ahead with these dimensions. And if you are not doing so, God will help you. They try to make you. You will mark this date today in your life. कि जो आज जो बताया गया है आप लोगों को, it is going to transform you in new pedestal. अगर आप इसको समझ सकते हो जो बताया गया है, इट्स आई ओपनर फॉर यू. आप सिंपल कुछ नहीं करो, यूजीसी की साइट पे जाओ, ये निकालो और देखो क्या लिखा है इसमें. गवर्नमेंट एक्सपेक्ट क्या करती है, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू नो फ्रॉम योर साइट. यू थिंक दैट यू वांट टू बिकम अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, देन डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड. Definitely you do something above than what other people are doing. Here, if you commit mistakes, only a peer will laugh at you. But once you in the out in open, in corporate, and if there is a debasal, other people will laugh, then there is a pain with us over here. Because they are not the people who want you to rise. Out there is heat, here is a peace time. यूक्रेन में वॉर चल रही है 1 साल से, लड़ाई झगड़ा चल रहा है. जो भी बम बनते हैं पीस टाइम में बनते हैं. कभी लड़ाई जब झगड़ा शुरू होता है ना, तब कोई बम नहीं बनाता. So this is a peace time for you. Prepare your arms and ammunition over here itself, so that when there is a war in the corporate, you can blast it off. You have to prepare for that war. So ये peace time जो आपके सामने आ रहा है, 4 aspects: academics, number 1. That's because that you have to pass the examination. Number 1, priority. Number 2 is research. Research means creativity. Don't undermine your creativity. Think in original thought process. आप किसी को कॉपी कैट मत करो. फैकल्टी ने कुछ बोला है, 10 स्टेप में कर रहे हो आप, उसको आप 5 स्टेप में करने की कोशिश करो. हो सकता है उसको आप 1 स्टेप में पूरा कर दो. That is your innovation. उस इनोवेशन के बेस पे आपका पेटेंट भी हो सकता है. एंड इट्स गोइंग टू बी नॉलेज इकोनॉमी. यू कैन mint money like anything from there. ओरिजिनलिटी थॉट प्रोसेस. और आपके साथ जो बैठ के हंस रहे हैं ना, कल को आपको देख के आप पे गर्व करेंगे. एंड दे हैव टू सिंपली अप्रिशिएट यू. जो समझ रहे हैं उनके दिमाग में जा रहा है, जो हंस रहे हैं वो फिर लाफिंग स्टॉक आगे बन जाएंगे. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बी सीरियस. थर्ड एस्पेक्ट इज आउटरीच एक्टिविटीज. जो सर ने बात करी है आपसे, आउटरीच एक्टिविटीज में यू हैव टू आउटरीच, यू टू रीच टू द पीपल, बिकॉज पीपल इज अ बिजनेस. एंड योर नेम विच हैज बीन गिवन बाय योर फादर एंड मदर, दैट इज अ ब्रांड. दैट्स अ ब्रांड. हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर इज अ ब्रांड नाउ. सो थिंक दैट the name which has been given to you by your father and mother with so dear to you, you must uphold that name in time to come. Don't try to rub it off. Do certain things in life which is going to add feather in your cap, so that we should be proud of you, Technia will be proud of you, and think that nation should be proud of you. Or silently try to do work hard. Silently try to do work hard. कोई कहने की जरूरत नहीं है. टाइम आएगा आपका जब आप ब्लूम करोगे, you'll स्काई राइड करोगे और रॉकेट अप करोगे. तो सिर्फ बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्राई टू वर्क हार्ड. मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सब लोग प्रीचिंग्स दे रहे हैं. प्रीचिंग्स हर टाइम अच्छी नहीं होती है. मैं ये मान के चलता हूँ कि हम आपको एडवाइजेस दे रहे हैं. वी आर जस्ट गिविंग यू एडवाइजेस, वी आर नॉट प्रीचिंग यू.
every generation is advanced generation than the previous generation. We believe in that phenomena. So हम आप पे believe करते हैं. We believe in yourself and we believe in you too. And we know that you are going to make your generation to add something in the nation's feather in the cap which they are going to be proud of. हर generation कुछ ना कुछ nation को contribution देता है और आप लोगों के पास important दायित्व है जिसको बोलते हैं responsibility to make India stand in a developed country. This is the agenda before you. Agenda before you to make India move from developing country to a developed country 2047. जिस टाइम 2047 आएगा आपके पास 20 साल 25 साल जो भी हैं, you are in the prime of your age, most productive years of your age, and think on those parameters. Knowledge is going to make you ahead. Knowledge, please think of it and go for it. Jobs की मैडम ने बात करी है. Jobs are a stepping stone of success. Think of career. जॉब पहला जो आपको मिलेगा यहाँ से, चाहे कहीं से मिले, आप उसको लो. अगर आपने एक महीने भी घर बैठ गए ना खाली होके, इट विल बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू. अगर मैं पास करके बैठ गया घर में 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जैसे जैसे महीने पास होते जाएंगे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होएगा और आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ेगी और कुछ और डिप्रेशन स्टार्ट होता है. तो इसलिए उस चीज को आने से पहले अपना सक्सेस फैक्टर डाल दीजिए. जो भी जॉब मिले उसमें सीखिए. एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स ट्राई टू लर्न दो स्किल्स एंड गो अहेड विद द सेकंड स्टेप. यू कैनॉट जंप ऑन टू द 10th स्टेप एट वंस. यू टेक इट वन बाय वन ऑल स्टेप्स. और सब बच्चे अपना डिजी लॉकर के ऊपर अपना अकाउंट खोल लीजिए. जितने भी 12th के सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर डाल लीजिए और जो भी क्रेडिट आपको बताया जा रहा है इंटर्नशिप के ऊपर, वो क्रेडिट के जो सर्टिफिकेट्स आएंगे उसमें डालते जाइए. That will help you of in time to come. जहीं पे भी आपकी चीज देखी जाएगी वो credibility, authenticity of certificate is only through DigiLockers in time to come. आपका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के अंदर एंटर हो गया, इसका मतलब सही में आपका डिजी लॉकर के अंदर सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है. अगर डिजी लॉकर में एंटर नहीं किया सर्टिफिकेट, दैट मींस वो सर्टिफिकेट जाली है. वो सर्टिफिकेट जाली है, आपके आधार कार्ड से लिंक ही नहीं है वो. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपके 10th के 12th के आपके आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, सब कुछ लिंक हो रहा है डिजी लॉकर के अंदर थ्रू आधार कार्ड. सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके जा रहे हैं. जो क्रेडिट आप स्कोर करोगे इंटर्नशिप पॉलिसी के तहत इंटर्नशिप पोर्टल पे, वो सर्टिफिकेट भी आएगा. वो डिजी लॉकर में जब ही जा सकता है जब वो सर्टिफिकेट ऑथेंटिक होगा. ये चीज और कोई नहीं बताएगा आपको कि डिजी लॉकर खोल लीजिए. एबीसी सिस्टम के अंदर आपके आ चुका है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. आपकी पासबुक खुल चुकी है और जैसे जैसे क्रेडिट आप इकट्ठे करते जाएंगे, दिस इज क्रेडिट्स आर नथिंग, योर स्किल सेट्स. ये आपके स्किल सेट्स हैं और कहीं पे भी दिखा सकते हो स्किल सेट्स. आई एम स्किल्ड ऑन दीज एरियाज. बड़े आराम से ऑथेंटिकेट कर सकते हो अपने आप को. तो ऑथेंटिकेशन ऑफ योर सर्टिफिकेट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज आज ही जाके अपने घर में जाके डिजी लॉकर में 10th 12th का सर्टिफिकेट डालिए, आधार कार्ड डालिए, ड्राइविंग लाइसेंस डालिए और अपना फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट जो भी है वो डालने की कोशिश करिए. इसको आप लाइव करिए. क्लियर समझ में आया सबको? ठीक है. सो विद दिस आई फील इट इट्स गोइंग टू बी गुड एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू ऑल. इफ एनीबडी हैज गॉट एनी यू कैन से क्वेरी, कोई क्वेरी हो किसी के पास. मैंने आपसे 2 चीज की बात की, एकेडमिक्स और रिसर्च. रिसर्च मींस इंटर्नशिप. और थर्ड मैंने बात करी है आपसे क्लब्स, एक्टिविटीज, आउटरीच. 14 क्लब्स हैं आपके पास, सेल्स हैं. उनमें से कोई भी आप 1 या 2 ऑफ योर चॉइस ज्वाइन कर सकते हो. दैट विल एड ऑन योर पर्सोना कि मैं किसी से बात कर सकता हूं, मैं किसी को समझ सकता हूं, क्या मैं किसी दुख दर्द में शामिल हो सकता हूं, क्या मैं ह्यूमन बीइंग हूं, क्या मेरे अंदर क्वालिटीज एज ए ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है, या किसी के दुख में मैं दुखी हो सकता हूं, क्या मैं सिंपैथी और एम्पैथी के अंदर डिफरेंस समझता हूं. यू हैव टू मेक you as a unique good human being also. This is the mandate of education. Education का मतलब ये नहीं है डिग्री हो गई.
एजुकेशन आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए कि यू आर ग्रेजुएट, और ग्रेजुएशन आप जाएंगे जो सिस्टम अभी जो इंडिया लेके आ रहा है, दिस इज गोइंग टू लिंक योर इंडियन एजुकेशन सिस्टम विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम. So thank you very much for the patient hearing, and may God bless you. You should come out with the chronicles in time to come. Thank you very much once again. I request Dr. Monica Mehrotra, HOD BBA, to propose a vote of thanks. एक माँ को अपना बेटा और अपनी बेटी सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं. आप लोगों ने कई, हाँ, और जो ये कह रहे नहीं, उसका मतलब ये है कि माँ डांटती है ये सोचकर कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. क्योंकि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं हाथ जोड़कर, हम भगवान को तो नहीं देखते ना. आपने भगवान कभी देखा है? नहीं देखा. लेकिन आप क्या अपने घर में मम्मी पापा से मांगते नहीं हो? ईश्वर के सामने हम मांगने जाते हैं ना कि मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए. लेकिन जो इस धरती पे रियल माँ बाप हैं, जो भगवान की तरह हैं, उनकी कितनी सारी एक्सपेक्टेशन है आपसे. लेकिन आप जब यहाँ आते हैं, आप कहते हैं ये वाली ड्रेस अच्छी है, मम्मा वो बोलती है ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, भले ही वो फटी होती है, जीन्स फटी है, लेकिन वो आपको अच्छी लग रही है, मम्मा ने कहा ले लो बेटा. दिन भर में ना जाने कितनी बार फ़ोन करती है, बेटा कब घर आ रहे हो, गाड़ी धीरे चलाना, ड्राइव मत करना तेज से, रैश ड्राइविंग मत करना. कहती है कि नहीं कहती? आप लोग कभी अपने माँ का कर्ज चुका नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप घर नहीं पहुंचते आपकी माँ सजदे में रहती है. वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आप चले आइए. तो अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए, उनके लिए जियो, उनके लिए कुछ करो जिनका सपना आपसे है. वो आपको सब कुछ देते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिला. बेटा आपके घर में एक माँ है जो आपकी भलाई के लिए सोचती है. सजदा समझते हैं? पूजा. तो आप अपनी एक माँ का कर्ज उतार नहीं सकते कि जो आप तक घर ना पहुंचो तो सजदे में रहती है. इतनी सारी माँओं का कर्ज कैसे उतारोगे बेटा? कैसे उतारोगे इतनी सारी माँओं का कर्ज? मुझे बता दो. क्योंकि जब बात बीबीए की होती है तो आपकी सारी माएँ परेशान हो जाती हैं. ये सोचती हैं कि कैसे हम क्या दे दें. मैम ने कहा बच्चा फर्स्ट आया, सबने क्लैपिंग करी. वो बच्चा यहाँ अवेलेबल भी नहीं था, क्योंकि मैंने भी उस बच्चे को कभी नहीं देखा. लेकिन जुड़ाव यहाँ से है बेटा, यहाँ से. हम लोग जो टीचर है ना, यहाँ से सोचते ही नहीं. अगर यहाँ से सोच रहे होते तो लाखों कमा रहे होते. हम यहाँ से सोचते हैं, इसीलिए कमाते कुछ नहीं है, सिर्फ देते हैं, सिर्फ देते हैं. वी आर हेयर टू गिव यू, तो गिव यू. हम क्या देते हैं? जो भी हमारे अंदर नॉलेज है, जो भी हमें आता है, वी जस्ट ट्रांसफरिंग यू, ट्रांसफरिंग यू, ट्रांसफरिंग यू. हु इज इंपॉर्टेंट, गिवर और टेकर? गिवर कि टेकर? गिवर ना. बट दे डोंट वांट एनीथिंग. मांगते हैं आपसे, कहते हैं मैं तुम्हें नंबर अच्छा दूंगा, ये पढ़ाई कर लो, तुम इतना ले आओ, ये मेरे को 2 किलो मिठाई देना या 2000 रुपए देना. बेटा तुम्हारी अटेंडेंस कम है, 75% अटेंडेंस नहीं आ रही है, तुम एग्जाम नहीं देने पाओगे बेटा. अच्छा चलो ठीक है, 5000 रुपए दे देना. कहते हैं क्या? नहीं कहते. दे आर कॉलिंग एंड रिक्वेस्टिंग यू. लिटरली हमें ये महसूस मत होने दीजिए कि हमने गलत प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया है. क्योंकि अगर कोई मेरे बेटे को कहता है कि आपका बेटा गलत है, आपकी बेटी गलत है, तो जितना खून खौलता है ना खुद के बच्चे के लिए, उससे दुगना खून खौलता है जब तुम्हें कोई कहता है कि आपके बच्चे नालायक हैं, आपके बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं, आपके बच्चे ये नहीं करते. उससे बहुत गुस्सा आती है. लगता है अरे हम क्या दे रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हम. अब मैं क्या चाहती हूं, आप सब खड़े हो जाइए. स्टूडेंट्स, पहली बात, वेडनेसडे और सैटरडे को छोड़कर आप सब यूनिफॉर्म में आओगे. अब ये मेरी चाहत है, ये मेरी इच्छा है. मैं इनसे बहुत बार करवाती हूँ. ये गलती करते हैं तो ये मेरे पास आते हैं, बोलते हैं. अब आपसे आज से अगर आपने गलती कर दी तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि मैं रॉन्ग हूँ.
वी ऑल लव यू। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं कि नहीं करते? मैं ये शपथ लेती हूं एक विद्यार्थी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं अपने क्लास में अपने इंस्टीट्यूट में उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए पूर्णतः समर्पित रहूंगा। मैं नशे से पूर्णतः मुक्त रहूंगा और मेरे साथ पढ़ रहे सहपाठियों को भी ये शिक्षा दूंगा कि वो नशे से दूर रहे। मैं अपने माता पिता के प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और आदरपूर्ण सम्मान करूंगा। मुझे जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन मैं दिल से करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।